Hello students, welcome to AgriMoon channel. My name is Abhay Sarva and it's a plant pathology lecture number 2.1. In this lecture, we talk about some introduction to plant pathogens. Let's start. So in this lecture, we talk about some major groups of the pathogens. We basically divide our groups in three basic categories. One are the biotic agents, second one are the mesobiotic agents and third one was the abiotic agents. So जो biotic agents होते हैं, these are the living agents. These are the living organisms. Mesobiotic agents are the both living or non-living. Basically in mesobiotic agents, viruses, viroids comes under this category. And the third one is abiotic agents. These are the no living factors that affects over the plant. So let's start with the biotic agents. First we see the examples of the biotic agents, then mesobiotic and then abiotic. Then we going to the detailed study of the biotic agents. So let's start. So biotic agents, or we also call as a parasites. So let's see what are the examples of the biotic agents. First one is fungi, and it is one of the greatest group of the and one of the greatest and most effective pathogen that is mainly affects over the plant. So first is fungi. Then we talk about bacteria, Fastidious vascular bacteria, protozoa, phytoplasma, spiroplasma, algae, phanerogamic higher plants. सो इनमें से जो हमारा फंजाई है और जो एल्गी है, दीज आर ये हमारे ज़्यादातर ही क्या है, यूकैरियोट्स हैं. जबकि दूसरी तरफ देखिए बैक्टीरिया, फेस्टियस वेस्कुलर बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फाइटोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड आल्सो दीज आर आल्सो कॉल्ड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स. जिसमें फंजाई और एल्गी हमारे क्या हो सकता है, ज़्यादातर मल्टीसेलुलर भी हो सकती हैं और यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं. And also the phanerogamic higher plants also come under this category. Let's going to the next agents. These are the mesobiotic agents. So mesobiotic agents are those agents which are the living or non-living both. When they are outside of the body, outside their host body, they are behave as like a non-living. Or when they attack on the host body, they become as a living agents. So let's see the examples. First one is virus, then we talk about viroids, and last one is virusoids. So among three, the viruses are the most important mesobiotic agents, and also they causes maximum losses. Now we're going to our next agents. These are the abiotic agents, or also we call non-parasite agents. And these are the non-living factors because they are the non-living agents. So first one is adverse weather condition. So second one is adverse property of growing medium, for example like soil. And third one is chemical and mechanical injury. सो एबायोटिक एजेंट्स के अंदर हमारे क्या आएंगे, हमारे नॉन लिविंग फैक्टर्स आएंगे. जैसे फर्स्ट क्या एग्जांपल है, ऐसी एडवर्स वेदर कंडीशन, जैसे वेदर की जो कंडीशन एडवर्स हो जाती है, जैसे टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इम्पैक्ट हो गया. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट हम जो बात करते हैं, इज एडवर्स प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रोइंग मीडियम. और ज़्यादातर हमारे एग्रीकल्चर में जो हमारे प्लांट्स का जो बेस्ट ग्रोइंग मीडियम है, डेट इज सोयल. कई बार ऐसा होता है कि सोयल की कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो कि एज अ हमारे लिए प्लांट को सफर करती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल सोयल का पीएच का इफेक्ट हो गया, सोयल के सॉल्ट्स का इफेक्ट हो गया, कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का इफेक्ट होता है, अनायन एक्सचेंज कैपेसिटी का इफेक्ट होता है. सो दीज आर कम अंडर द सेकंड पॉइंट. देन वी टॉक अबाउट द केमिकल एंड मैकेनिकल इंजरी. केमिकल इंजरी में क्या होता है, कई बार कुछ पेस्टिसाइड की स्प्रे करने से हमारे प्लांट्स को सफ़र करते हैं, कुछ हर्बिसाइड्स का केमिकल स्प्रे का कुछ रेजिड्यू इफेक्ट्स शो करते हैं. एंड आल्सो द मैकेनिकल इंजरी. मैकेनिकल इंजरी में क्या, कुछ भी जैसे हवा वगैरह चलने से या फिर कोई ह्यूमन के इंटरफेयर्स करने से कुछ प्लांट्स हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं. सो दिस कम अंडर द मैकेनिकल इंजरी. So in this lecture we talk about in brief about the biotic agents, that's also called the parasites. In our next lecture, that is our 2.2 lecture, on that lecture we talk about some mesobiotic agents and also the abiotic agents in brief. So in this lecture we only talk about the biotic agents in detail. So first our biotic agents, that's also the parasite group, that is fungi. सो सबसे पहले हम फंजाई की बात करेंगे. द फंजाई आर द यूकैरियोट्स एंड द ए क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म. दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज हैं सभी प्रेजेंट है. जैसे इनके पास उनका खुद का एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. यानी कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं सभी इनके पास प्रेजेंट है. और दीज आर एज कॉल्ड ए क्लोरोफाइलस ऑर्गेनिज्म. इनके पास खुद का कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. एंड दीज आर द न्यूक्लिएटेड branch and the unicellular or multicellular organism that may reproduce by the division of vegetative cells and well-defined asexual and sexual spores. Body of the fungi is called as a thallus. So जो फंजाई होते हैं ये न्यूक्लिएटेड होते हैं
ब्रांच होते हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। तो ज़्यादातर जो इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है, इनके जो वेजिटेटिव सेल्स हैं वो डिवीजन से हो सकती है, और इनके पास वेल डिफाइंड एसेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं और सेक्सुअल स्पोर्स भी होते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है, उनकी बॉडी को हम कहते हैं थैलस कहते हैं। और ये थैलस एक ऐसी बॉडी होती है दैट इज नॉट डिफरेंशिएटेड टू स्टेम, लीव्स एंड लैक ऑफ ट्रू रूट्स एंड अ वस्कुलर सिस्टम। यानी कि थैलस एक तरह की ऐसी बॉडी होती है जिसके पास खुद का ना तो कोई स्टेम होती है, ना कोई लीव्स होती है, ना ही उसकी खुद के पास कोई roots होती हैं. So this is the fungi body is called as a thallus. The thread-like filament of the fungi is known as a hyphae, and while the hyphae of one body or a thallus are known as a mycelium of the fungus. सो जो हमारा सबसे जो छोटा स्पोर होता है, यानी कि अगर हम बात करें कि जो इसका सीड होता है, जैसे प्लांट्स के अंदर सीड होते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, एक सीड में से जर्मिनेट करते हैं। सो हम फंजाई के जो सीड्स को क्या, स्पोर्स को हम क्या कहते हैं, फंजाई के एज अ सीड की तरह कहते हैं। इनको एज अ कंपेयर करें तो ये दैट एट्स लाइक ऑफ द प्लांट्स सीड्स। सो सीड में से सबसे पहले एक थ्रेड लाइक फिलामेंट से निकलती है, उस फिलामेंट का नाम क्या होता है, हाइफी होते हैं। यानी कि सबसे पहले स्पोर निकलता है, स्पोर में से एक फिलामेंट निकलती है, उस फिलामेंट को हम क्या कहते हैं, हाइफी कहती हैं। और जब काफ़ी ज़्यादा हाइफी का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, यानी कि जब 3-4 हाइफी इकट्ठे होकर एक बॉडी बनाती है, या फिर उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। और माइसीलियम क्या होता है, एज अ ग्रुप ऑफ अ हाइफी। द फंगल सेल वॉल कंटेनिंग चाइटिन और सेलुलोज। सो फंगाई की जो सेल वॉल होती है उसमें क्या होता है, ज़्यादातर चाइटिन होता है। अप्रोक्सीमेट जो 90% जो हमारे फंजाई होते हैं उनके अंदर क्या होती है, चाइटिन की सेल वॉल होती है। एक्सेप्ट एक केस है जिसके अंदर oomacytes जो हमारे ग्रुप्स होते हैं, oomacytes हमारे फंजाई के ग्रुप्स हैं, उनके अंदर जो उनकी जो सेल वॉल है इट्स मेड ऑफ द सेलुलोज। सो सिर्फ जो oomacytes ग्रुप्स हैं, यानी कि जो हमारे लोअर फंजाई ग्रुप्स हैं, उनके पास जो उनकी जो सेल वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। एंड सम इम्पोर्टेंट डिजीजेस कोज बाय द फंजाई, जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस जो फंजाई करती हैं, उनकी बेस्ट एग्जांपल दैट इज अ लेट ब्लाइट ऑफ अ पोटैटो, कॉफी रस्ट, ब्लैक रस्ट, लूज स्मथ ऑफ अ wheat, downy and powdery mildew. So these are the important disease which by caused by a fungi in plants. Among these, the late blight of a potato is one of the greatest disease, and it caused an epidemic in 1845 in Ireland. And also the Anton de Berry, that's the father of the plant pathology related to the this diseases. सो ये तो हुई फंजाई की बात, जिसके अंदर हमने फंगस के बारे में जाना कि फंगस एक यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है और ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। सो नाउ वी गोइंग टू अवर सेकंड बायोटिक एजेंट एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एजेंट दैट इज बैक्टीरिया। सो हम बैक्टीरिया की बात करेंगे। बैक्टीरिया आर द यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक एंड प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। इट्स अ प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म। सो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास खुद की कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, एंड विच लैक क्लोरोफिल। सो इनके पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ना बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल होता और ना फंजाई के पास क्लोरोफिल होता। सो जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, इसलिए उनको फूड के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। एंड दीज माइक्रोब्स आर विद अ प्रिमिटिव न्यूक्लियस लैकिंग अ क्लियरली डिफाइंड मेम्ब्रेन। और ये जो माइक्रोब्स है सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है, यानी कि सबसे पुराना और सबसे, यानी कि हमारे अर्थ में सबसे पुराना जो ग्रुप चल रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनमें से एक कौन है, बैक्टीरिया। और इनके पास जो एक न्यूक्लियस इनका काफ़ी पुराना है, एंड लैकिंग ए क्लियरली डिफाइंड मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स है और प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स में वैसे भी कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती। सो इनकी जो न्यूक्लियस है इट्स इनके न्यूक्लियस में कोई भी इस तरह की ऑर्गेनेली नहीं है। The bacteria are the smaller than fungi and measure about 0.5 to 1 multiplied to 5 micrometer इन साइज। सो जो हमारे बैक्टीरिया आते हैं दीज आर द स्मॉलर देन फंजाई, और इनका जो साइज होता है, साइज भी काफ़ी स्मॉलर होता है। मोर देन 1600 बैक्टीरिया स्पीसीज आर नोन एंड अबाउट 200 स्पीसीज ऑफ द बैक्टीरिया कोज डिजीज इन द प्लांट्स। सो लगभग अराउंड 1600 के करीब बैक्टीरिया स्पीसीज अभी तक नोन है, जिनके ऊपर रिसर्च हो चुके हैं या जिनके हमारे पास प्रॉपर एविडेंस है, प्रॉपर नोमेनक्लेचर अवेलेबल है। उनमें से सिर्फ 200 स्पीसीज इस तरह की बैक्टीरिया की है जो कि प्लांट के अंदर डिजीज करती है। बाकी जो 1400 जो स्पीसीज रह गई हैं वो क्या कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो सारे जो बैक्टीरिया वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। The first report of the plant disease of the bacteria was made by T.J. Burrell, that is Thomas Jonathan Burrell of the University of Illinois. So इन्होंने सबसे पहले showed that a fire blight of the apple and the pear is caused by a bacteria, and he named this bacterium is Erwinia amylovera. सो हमने इस पॉइंट का बात हमने हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा था कि जो टीजे ब्यूरेल ने, इन्होंने सबसे पहले एक बैक्टीरियल डिजीज़ का डिस्कवरी की थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस के अंदर। और इन्होंने जिस डिजीज़ के बारे में सबसे पहले जो स्टडी की थी वो थी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल या फिर पीर। और जो पैथोजन था, यानी कि जो ईटोलॉजिकल फैक्टर था इसके पीछे, वो कौन था, इरविनिया अमाइलोवेरा। द मोस्ट कॉमनली दीज आर द मल्टीप्लाई बाय द ए सेक्सुअल मेथड। ज़्यादातर ए सेक्सुअल मेथड से ये मल्टीप्लाई होते हैं, एंड द रिजल्टिंग सेल बीइंग द इक्वली साइज एंड द इक्वल वेट।
सो इनका इक्वल साइज होता है। बेसिकली हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, वन आर द ग्राम पॉजिटिव, एक हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और एक हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। सो जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं ये तो हमारे लिए डिजीज कॉजिंग नहीं होते, सिर्फ 1 टू लेके सिर्फ 5 to 10% आप कह सकते हो उनमें से डिजीज कॉजिंग हो सकती हैं। जैसे हमारे कोई बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि ग्राम पॉजिटिव हमारे लिए डिजीज कॉजिंग हो, लेकिन जो हमारे लिए ग्राम नेगेटिव जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे हमने बात की है कि अप्रोक्सीमेट 200 स्पीसीज इस तरह की स्पीसीज है जो कि क्या करती हैं, डिजीज करती हैं। सो इन 200 स्पीसीज में से मैक्सिमम जितने भी हमारे बैक्टीरियल स्पीसीज हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। इनको हमने इनकी सेल वॉल के करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, इनके डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर के हिसाब से इनको हम डिवाइड करते हैं। सो हमारे लिए जो प्लांट्स के लिए जो हार्मफुल है, जो पैथोजन के तरह एक्ट करते हैं, सो दीज आर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। So this is all about the bacteria. Now we talk about the next important category of the biotic agent, that is Fastidious vascular bacteria, and also called Rickettsia like bacteria, that is RLB. So Fastidious vascular bacteria, otherwise called Rickettsia like or bacteria or RLO like organisms. So these are like a wall bacteria. So ये bacteria जैसे होते हैं, but they are the smaller bacteria with a cellular ultrastructure of a typical gram negative bacteria. So these are the small bacteria, और ये क्या होते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. So these are the gram negative. So approximate ये क्या 99% ये क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग ही एजेंट होते हैं. एंड दे हैव अ सेल वॉल लाइक अनलाइक एमएलओ एंड स्पाइरोप्लाज्मा. सो जैसे एमएलओ और स्पाइरोप्लाज्मा के पास सेल वॉल होती है, इनके पास भी होती है. एमएलओ इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फोइलम टिश्यू एंड वेयर एज द आरएलबी, डेट इज रिक्सेसिया लाइक बैक्टीरिया, रिस्ट्रिक्टेड टू द मोस्टली जाइलम एंड द फ्लोएम. सो जो माइक्रोप्लाज्मिक लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर फ्लोएम टिश्यू पे इफेक्ट करते हैं. यानी कि जो फ्लोएम टिश्यू का आपको पता है कि फ्लोएम टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्टेशन करना. यानी कि जो एमएलओ होता है वो कहीं ना कहीं किस चीज़ को इंटरफेयर करता है, वो फ्लोएम को इंटरफेयर करता है. वो ज़्यादातर हमारे फ्लोएम को इंटरफेयर करता है. जबकि हमारे जो आरएलबी है, डेट इज फैस्टिडियस वस्कुलर बैक्टीरिया, भी इसको कह देते हैं, ये जाइलम को भी इफेक्ट करता है और फ्लोएम को भी इफेक्ट करता है. यानी कि दोनों चीज़ों को इक्वली इफेक्ट करता है. यानी कि जाइलम की फंक्शंस को भी इंटरफेयर करेगा और फ्लोएम के फंक्शन को भी इंटरफेयर करेगा. ए कॉमन हैबिटेट फॉर बोथ इज दैट इंसेक्ट बॉडी फ्लूइड. और ये क्या है, जो हमारे रिक्सेटिया लाइक बैक्टीरिया होते हैं, इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए इनको एक बॉडी की ज़रूरत होती है, एक एजेंट की ज़रूरत होती है. और वो एजेंट का काम क्या करते हैं, इंसेक्ट की, जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे एग्रीकल्चर्स के जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो उनको एज अ कॉमन हैबिटेट का काम करते हैं. जो इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, जिसको हम हीमोलिम्फ कह देते हैं, सो ये क्या करते हैं, बेसिकली इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर रहते हैं. और इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर रहकर जैसे वो इंसेक्ट्स हमारे प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, साथ के साथ जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं साथ के साथ प्लांट को भी इन्फेक्ट करेंगे. यानी कि इनको मूवमेंट के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अपनी बॉडी की मूवमेंट के लिए एक एजेंट की जरूरत होती है. और वो एजेंट इनके लिए क्या होता है, एक इंसेक्ट की बॉडी फ्लूइड होता है. सो बोथ आर ग्रुप आर द डिपेंड ऑन द इंसेक्ट वेक्टर. सो इनको इंसेक्ट वेक्टर की जरूरत होती है फॉर देयर ट्रांसमिशन. यानी कि इनको अपनी ट्रांसमिशन के लिए, अगर हम बात करें फंजाई की, इससे पहले हमने फंजाई की बात की, बैक्टीरिया की बात की, सो इनको एज अ कोई इंसेक्ट वेक्टर की ज़रूरत नहीं होती. ये सीधी डायरेक्टली अटैक कर सकते हैं प्लांट पे. लेकिन जो हमारे आरएलबी होती हैं, आरएलबी हो गया, एमएलओ हो गया, इनको डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकते. इनको अटैक करने के लिए किसी की बॉडी चाहिए होती है, यानी कि एक एजेंट की जरूरत चाहिए होती है, एक वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. सो वेक्टर का काम कौन करता है, इंसेक्ट्स करते हैं. सो अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं, दैट इज Pierce disease of the grapevine, almond leaf scrotch, and the Foynier disease of the peach and the plum leaf scrot. So these are the important diseases which are the caused by the RLB or the Fastidious vascular bacteria. Now we talk about our next biotic agent, that is phytoplasma. So phytoplasma के बारे में बात करेंगे. Phytoplasma lack a cell wall. So इनके पास cell wall नहीं होती and bounded by a unit membrane. सो इनकी जो सेलुलर स्ट्रक्चर होती है, एक जो कि एक यूनिट मेम्ब्रेन से बाउंडेड होती है. एंड दे आर द प्लीरोमॉर्फिक. प्लीरोमॉर्फिक का मतलब है कि ये अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं. यानी कि जो अपनी इनकी एक जो स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर यूनिक स्ट्रक्चर नहीं होती. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन ये अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं. फॉर फ्लीरोमॉर्फिक, जो यहाँ पे फ्लीरोमॉर्फिक का मतलब है कि अपनी बॉडी को चेंज करना, यानी कि अपनी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में चेंज करने की कैपेबिलिटी को या एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, फ्लीरोमॉर्फिक कहते हैं. एंड दे लैक सेल वॉल. दे हैव फ्राइड एग अपीयर ऑफ द कॉलोनी. यानी कि जब इनको हम कल्चर करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो इनकी जो कॉलोनी होती है उनमें फ्राइड एग जैसी अपीयरेंस आती है, जैसे रॉटन जो एग होते हैं, यानी कि जो सड़े हुए अंडों की स्मेल्स आती है. एंड दे हैव अ बोथ डीएनए एंड आरएनए. सो इनका जो जेनेटिकल मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है.
दे कैन नॉट बी ग्रोन ऑन द आर्टिफिशियल मीडियम, इनको हम आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। यानी कि जैसे हमारे जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, इनको हम इजीली आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे फाइटोप्लाज्मा होते हैं इनको हम आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर ग्रो नहीं कर सकते। दे प्रोड्यूस सिम्टम्स लाइक लिटल लीफ, फाइलोडी, स्पाइक, येलो, स्टंटिंग, रिच ब्लूम, एंड दे आर मोस्टली ट्रांसमिटेड बाय द लीफ होपर्स। सो इनको भी ट्रांसमिशन के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है। सो इनके लिए जो बेस्ट वेक्टर है दैट इज लीफ होपर। जितने भी फाइटोप्लाज्म का जितने भी डिजीज हमने ये पढ़ते हैं, ये सभी डिजीज के लिए एक वेक्टर की जरूरत होती है। जो सबसे कॉमन वेक्टर है वो है हमारा लीफ होपर। जितनी भी डिजीज है, जैसे फाइलोडी डिजीज होती है, फाइलोडी डिजीज हमें ज़्यादातर सेसमी के अंदर दिखती है। लिटिल लीफ डिजीज है जो ब्रिंजल के अंदर होती हैं। जो इन डिजीज को इफेक्ट करने के लिए एक इंसेक्ट वेक्टर की जरूरत होती है, और वो इंसेक्ट वेक्टर कौन सा होता है? हमारा लीफ होपर होता है। And they are insensitive to the penicillin and sensitive to the tetracycline. पेनिसिलिन एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, एक एंटीबायोटिक एजेंट का काम होता है। पेनिसिलिन को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एज अ कंट्रोल मेजर फॉर द बैक्टीरिया, लेकिन जो हमारे फाइटोप्लाज्मा एलिमेंट्स है दीज आर द इनसेंटिव, यानी कि ये रेजिस्टेंस है पेनिसिलिन केमिकल्स के खिलाफ, लेकिन एंटीबायोटिक के खिलाफ, लेकिन जो हमारी टेट्रासाइक्लिन है उसके खिलाफ सेंसिटिव है। यानी कि अगर हम टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से इनको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे इनकी एग्जाम्पल है फाइलोडी ऑफ सेसमे एंड द लिटिल लीफ ऑफ द ब्रिंज। So this is our the phytoplasma. So then we talk about our next biotic agent, that is a spiroplasma. Spiroplasma. स्पायरोप्लाज्मा इज अ हेलिकल, जो इनकी जो बॉडी होती है इस तरह की हेलिकल होती है, इस तरह की हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, जिस तरह आपको स्क्रीन में स्ट्रक्चर दिखाई दी होगी। एंड द वॉललेस प्रोकैरियोट, ये वॉललेस होते हैं सेम एज लाइक ऑफ द फाइटोप्लाज्मा, इनके पास भी कोई वॉल नहीं होती। एंड रिक्वायर कोलेस्ट्रॉल फॉर देयर ग्रोथ, सो इनकी ग्रोथ के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड कोज डिजीज इन प्लांट्स, इन इंसेक्ट्स एंड द रैट्स, ये ना सिर्फ प्लांट्स के अंदर डिजीज करते हैं बल्कि इंसेक्ट्स के अंदर भी ये डिजीज करते हैं और रैट्स के अंदर भी डिजीज करते हैं। एंड दे आर द इनसेंसिटिव टू पेनिसिलिन, सो सेम एज लाइक केस ऑफ द फाइटोप्लाज्मा, जैसे फाइटोप्लाज्मा को पेनिसिलिन इफेक्ट नहीं कर पाता, सो स्पायरोप्लाज्मा को भी नहीं इफेक्ट करता। बट दे आर द सेंसिटिव टू द इंथ्रोमाइसिन एंड द टेट्रासाइक्लिन, लेकिन जो इंथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन जो हमारे एंटीबायोटिक्स हैं, इनको ये इजीली कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो एक चीज़ याद रखना, जब भी हम बैक्टीरिया लाइक को, जो भी बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, इनको कंट्रोल करने के लिए हम ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स है जैसे पेनिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, एंथ्रोमाइसिन हो गया। लेकिन जो पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलिन है, वो स्पायरोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा के खिलाफ इतनी मतलब कैपेबल नहीं है, मतलब इतनी कारगर नहीं है, इसलिए हम ज़्यादातर यहाँ पर एंथ्रोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं। और जो कॉमन डिजीज़ ये स्पायरोप्लाज्मा करते हैं, इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कॉर्नस्मट और सिट्रस स्टबबोर्न, ये दो मोस्ट कॉमन डिजीज है जो कि कौन करते हैं? स्पायरोप्लाज्मा लाइक एलिमेंट्स करते हैं। Now we are going to the algae. So algae over the next agent. So algae are the eukaryotes, unicellular or the multicellular, and the mostly occur in the aquatic environment. So ज़्यादातर ये aquatic environment में होते हैं। So these are the mostly occur in the aquatic environment, and the many algae thrives as the terrestrial or the subterrestrial algae. कुछ इस तरह की algae होते हैं जो terrestrial लैंड पे भी रहती है, लेकिन ज़्यादातर जो algae होते हैं आपको ज़्यादातर सी के ज़्यादातर समुद्र के किनारे या फिर रिवर या फिर पॉन्ड, यानी कि जहाँ पे aquatic environment, यहाँ पर मतलब मॉइस्चर ज़्यादा है, मतलब वाटर ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा ये होते हैं। The size of the algae range from the 1 mm to the many centimeter in the length. They contain chlorophyll and they are the photosynthetic, and these are the only plant pathogen who are the chlorophyll, they contain as a chlorophyll, and also they perform the photosynthetic processes. They reproduce by asexual and the sexual process. The study of the algae is called phycology और algology. So algae की study को हम क्या कहते हैं? phycology या फिर algology कहते हैं। और जो हमारी algae होती है बहुत ही रेयर डिजीज करते हैं, इनकी कोई खास कॉमन डिजीज नहीं। जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें, जैसे रेड रस्ट ऑफ टी, लीफ स्पॉट ऑफ द गवावा। सो एल्गी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट डिजीज नहीं करती, इतना मतलब इंपॉर्टेंट एजेंट्स नहीं है एज लाइक ऑफ द फंजाई एंड द बैक्टीरिया। नाउ वी गोइंग टू द नेक्स्ट बायोटिक एजेंट, दैट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर द माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिजम्स। प्रोटोजोआ अटैकिंग प्लांट्स मूविंग बाय द फ्लैजेला, ये ज़्यादातर माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये फ्लैजेला की हेल्प से मूव करते हैं। सो इनके पास एक फ्लैजेला होती है इस तरह, जो कि इनको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। जैसे ये प्रोटोजोआ है, ये जो है ये क्या है? हमारा फ्लैजेला है। फ्लैजेला क्या करता है? इसको मूव करने में हेल्प करता है। द फ्लैजेला यूज फॉर द लोकोमोशन, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, एंड द फूड कैप्चर, ये फूड कैप्चर करने में भी इनको हेल्प करते हैं, आल्सो फॉर देयर लोकोमोशन, और वी आल्सो कॉल एज अ मूवमेंट। फ्लैजेला अपीयर कोज द फ्लोएम निक्रोसिस ऑफ द डिजीज, ये क्या करते हैं? फ्लोएम निक्रोसिस कॉफी में करते हैं, और हार्ट रॉट ऑफ द इन कोकोनट पाम। सो ज़्यादातर ये कोई खास इतने इंपॉर्टेंट एजेंट नहीं है, सिर्फ ये दो ही इंपॉर्टेंट डिजीज करते हैं, प्रोटोजोआ।
Now we're going to our next biotic agent, that is phanerogamic parasites. So phanerogamic parasites are the flowering plants or the seed plants which lead a parasite life on the other plants. These are the plants. These are not as a pathogen. These are not as a microscope microorganisms. They are like a plant. So ये क्या करते हैं, ऐसे plants की तरह flowering plants भी हो सकते हैं और ये seed plants भी क्या होते हैं, ये अपना मतलब अपनी जी एज अ पैरासाइट के तौर पे रहते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर. एंड दे पैरासाइट्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ द इकोनॉमिकल नंबर ऑफ प्लांट्स. ये काफ़ी इकोनॉमिक्स प्लांट्स के ऊपर हमें इफेक्ट करते हैं एंड कोज अ considerable loss in the yield. The phanerogamic parasites invade the stem and the roots of the host plant. ये ज़्यादातर हम जो हमारे प्लांट्स के स्टेम्स को इफेक्ट करते हैं, रूट्स को इफेक्ट करते हैं. एंड सम ऑफ दिस phanerogamic पोसेसेस क्लोरोफिल. कुछ फिनेरोगैमेटिक जो हमारे पैरासाइट्स होते हैं उनके पास क्लोरोफिल होता है विच मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स. सो ये क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर करते हैं कुछ लिमिटेड एक्सटेंट तक, लेकिन ये ज़्यादातर अपने कार्बोहाइड्रेट्स की मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने यानी कि अपना फूड बनाने के लिए, क्योंकि इनका जो क्लोरोफिल होता है इतना मतलब वेल एस्टेब्लिश नहीं होता, इसलिए इनको एज अ पैरासाइट रहना पड़ता है दूसरे होस्ट प्लांट्स के ऊपर. एंड दे आर जनरली कॉल्ड एज अ सेमी और द पार्शियल पैरासाइट्स. सो दे ये ज़्यादातर मिनरल्स के लिए, साल्ट्स के लिए, वाटर के लिए, दूसरे प्लांट्स के लिए डिपेंड रहते हैं. एंड दीज आर द जनरली कॉल्ड एज अ सेमी और द पार्शियल पैरासाइट्स. सो अगर बेस्ट एग्जांपल की बात करें जैसे ओरबेंची, लोरेंथस, कस्कूटा एंड द स्ट्राइका. सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ द phanerogamic पैरासाइट्स. सो ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ जो हमारा ये वाला लेक्चर ओवर होता है. सो स्टूडेंट्स जो ये वाला जो टॉपिक है अभी हमारा पूरा नहीं हो, इसकी एक नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, दैट इज लेक्चर नंबर 2.2. और उस लेक्चर के अंदर हम मीजोबायोटिक एजेंट्स और हमारे जो एबायोटिक एजेंट्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. एंड आपने इस वीडियो को लाइक करना है और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको इस वीडियो के मैक्सिमम नोटिफिकेशन मिल सके. आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने इस कमेंट सेशन में जरूर आपने बताना है. सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द वॉचिंग. ओके, थैंक यू, बाय बाय.